Good morning class. Today we start our next chapter 8, Introduction to Trigonometry. ठीक है जी, ट्रिग्नोमैट्री की ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ट्रिग्नोमैट्री देखो आप ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It is branch of mathematics that provide a relation between the sides and angles of triangles। ठीक है जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਨਾ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमैट्री ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਹੈ ਇਹਦਾ TRI, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3, ਟਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ GON, ਗੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਈਡਸ, ਗੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਸ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਈਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਟਰੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਟਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਈਡਸ ਬਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਈਡਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਐਂਗਲਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 60 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੇਖੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਮਤਲਬ ਲੰਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਕਰਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਬਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਸ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ ABC, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਚੀ ਹੋਗੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ। ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕ ਥੀਟਾ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਟ ਥੀਟਾ।
ठीक है जी। ये अपन ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज होंगे और ये रेशियोज कितों फाइंड होंगे अगेन इस लाइन तो ही आ वाली ट्राइंगल तो ही ये साइड्स तो ही। ठीक है जी। इन्हां रेशियोज नूं लर्न करना बहुत ईजी आ। किस तरह एक आप फॉर्मूला देखते हैं उन्होंने थ्रू ईजीली इन्हों आप देख लें कि होगा। देखो आप एक फॉर्मूला देखते हैं इत्थे लिखना सोना चांदी तोले। ठीक है पहली लाइन याद रखनी है सोना चांदी तोले। फिर पंडित बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी। देखो SCT की है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इन्नी गल समझ लगी इन्नी गल समझ लगी। ठीक है जी। हुण जिहड़ा इत्थे एस आ इहदा मतलब की है साइन कॉट पेंसिल दे नाल लिख दिंदे आ जी। इहदा मतलब की है साइन कॉट सॉरी कॉज इहदा मतलब की है टैन। ठीक है जी। साइन कॉज टैन पहले तो ये आ गया। हुण जिहड़ा P आ P का मतलब की आ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और H का मतलब की है इत्थे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बचा B का मतलब की है जी बेस। इन्नी गल क्लीयर हुई सबनों। P का मतलब की है परपेंडिकुलर B का मतलब की है बेस H का मतलब की है हाइपोटेनियस S का मतलब साइन C का मतलब कॉस T का मतलब टैन। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि मैंने इन्ना तो पता चल गया कि ਜਿਹੜਾ साइन आ वो इत्थे रेशियोज़ की गल आप करते पे सीगे। ठीक है रेशियोज़ की होंगे इस तरह आप लिखते हैं रेशियो लाइक 3:4 दैन उन्होंने फिर आप अपॉन च भी लिख लेंगे 3/4। ठीक है जी। सेम चीज़ हुण इत्थे की ला देना P/H B/H P/B। साइन का आंसर की आ P/H साइन का आंसर की P/H C का आंसर की है कॉस का B/H टैन का आंसर की है P/B। ठीक है जी। हुण उही आंसर्स आप इत्थे पुट कर देने साइन की रेशो कितनी आ रही सी P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की की आ रही है B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन की की आ रही है फिर P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हुण किहड़े रह गए कोसिक थीटा सैक थीटा कॉट थीटा। ठीक है। हुण जो तुसीं इन्हां नूं फाइंड भी करना है साइन थीटा जिहड़ा साइन थीटा आ अगे तुसीं देख सकते हो P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर वाली किहड़ी लाइन आ AB तो आप इहदी जगह ते P की जगह ते मैं की लिख सकती हाँ AB। ठीक है जी। फिर H की है हाइपोटेनियस वाली किहड़ी लाइन आ AC। ठीक सॉरी अपॉन इत्थे आना AC। ठीक है अपॉन इत्थे भी AC आ जाना है B मतलब बेस की लाइन किहड़ी है जी BC। ठीक है जी। हुण सेम परपेंडिकुलर की लाइन किहड़ी है AB अपॉन की है B की लाइन किहड़ी है BC। आप इत्थे की लिख देंगे लाइन B एंड C। ये तो तीनों क्लीयर हो गए ये तीनों इत्थों क्लीयर हो गए। हुण एक गल होर ध्यान च रखण वाली आ रेसिप्रोकल्स। हुण इहनूं लर्न करन दा एक फॉर्मूला है देखो आप इत्थे हेक्सागन दी एक फिगर बना देने आ। ठीक है जी। ठीक है जी। हुण देखो इत्थे आप लिख देना साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। फिर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है जी। टैन थीटा तो हुण देखो साइन थीटा तो बाद कोसेक थीटा कॉस थीटा तो बाद सैक थीटा टैन थीटा टू कॉट थीटा। ठीक है। ये अपने को एक हेक्सागन की फिगर बन गई है तुसीं स्केल नाल बना सकते हो। ठीक है जी। बस ये है कि तुहानूं एक तरीका दसना आपां कि किस तरह लर्न करने आ वाले फॉर्मूलाज। ठीक है जी। हुण देखो
इसी हैग्जागन तो ਆਪਾਂ काफ़ी फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमैट्री ਦੇ बना सकते हैं। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ, ਕੌਸ, ਟੈਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੌਸਿਕ ਥੀਟਾ, ਮਤਲਬ 1 ਕੌਸਿਕ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਸ ਥੀਟਾ, ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਸੈਕ ਥੀਟਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੌਟ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ, ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ ਸਾਈਨ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸੇਮ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਕ ਥੀਟਾ, ਸੈਕ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ 1 ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸੇਮ ਕੌਟ ਥੀਟਾ, ਕੌਟ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ, ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ, ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ੈਡ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸੈਕ ਥੀਟਾ, ਦੈਨ ਸੈਕ ਥੀਟਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 cos ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1 cot ਥੀਟਾ, cot ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1 ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। देखो टैन ते कॉट आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, तो अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ऑपोजिट की गल है, तो यदा मतलब फिर जो उपरली टर्म नीचे चल जानी, नीचली टर्म ऊपर चल जानी। कॉस इतने नीचे से ऊपर चला गया, साइन इतने ऊपर से इतने नीचे चला गया, ठीक है जी। ये तो रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। हुण इसी रेसिप्रोकल आप इत्थों किद्दां फाइंड कर सकते हैं, इत्थे देखो जदों साइन कॉस टैन सी उदों इस तरह जा रही सी टर्म पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। हुण मैनूं पता साइन दा ऑपोजिट, साइन दा की ऑपोजिट आ, साइन दा ऑपोजिट की आ कॉसेक थीटा। तो इत्थां मतलब इत्थे की आ गया मेरा सी, जां पूरा कॉसिक लिख दो कि तुहानूं कन्फ्यूजन ना हो जाए कॉस दे नाल, ठीक है जी। फिर कॉस दा ऑपोजिट की आ सैक थीटा, इत्थे लिख दो सैक थीटा, ठीक है जी। टैन दा ऑपोजिट की आ कॉट, इत्थे की लिख देंगे आप कॉट थीटा, ठीक है। हुण कंडीशन की आ, पहली कंडीशन सी कि साइन पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी चलता, बट जो कॉसिक ते आए ना मतलब ऑपोजिट चलन लग पे, एक दूजे के उल्ट चलन लग पे, तो फिर इत्थे की आ जाना इत्थे उल्टा हो जाना है। इत्थे मेरा साइन का की सीगा पी अपॉन एच, हुण कॉसेक का की हो जाना है, एच उपर चल जानी है, पी नीचे आ जानी है, ठीक है। सेम सी का कॉस का की सी बी अपॉन एच, ठीक है। हुण सैक का की हो जाना है एच अपॉन बी, मतलब एच उपर चल गई, बी नीचे आ गई, ठीक है जी। फिर कॉट टैन का की सी पी अपॉन बी, हुण कॉट का की हो जाना है, कॉट का की हो जाना है बी उपर चल जाना, पी नीचे आ जानी है, ऑपोजिट चल जाने हैं, ठीक है जी। तो आई चीज़ सेम इत्थे पुट कर देनी है आप, देखो की आ जाना मेरा एच अपॉन पी, मतलब एच अपॉन पी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नैक्सट की आ रहा है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। नैक्सट की आ रहा मेरा पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, ठीक है जी।
ਹੁਣ एच वाली लाइन किहड़ी आ ए सी पी दी लाइन किहड़ी परपेंडिकुलर ए बी सेम एच दी लाइन किहड़ी आ ए सी बी दी लाइन किहड़ी आ बी सी नैक्सट बी दी लाइन किहड़ी आ जी बी सी और पी दी लाइन किहड़ी आ ए बी परपेंडिकुलर दी। हुण ध्यान नाल देखो सारियां चीज़ां फाइंड होईयां साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसिक थीटा सैक थीटा कॉट थीटा। हुण गल हो रही सी रेसिप्रोकल दी साइन थीटा पी अपॉन एच सी ना तो वह ऑपोजिट होंदा कॉस थीटा फिर की हो गया एच अपॉन बी ऑपोजिट हो गया। इत्थे पी उपर सी इत्थे नीचे चल गए इत्थे एच नीचे सी इत्थे उपर चल गए। सेम कॉस थीटा सी बी अपॉन एच सैक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आ की हो गया एच अपॉन बी। फिर टैन थीटा पी अपॉन बी सी टैन का रेसिप्रोकल की होंदा कॉट फिर बी उपर चला गया पी नीचे आ गया। इन्नी गल समझ लगी कि रेशोज़ तुसीं किस तरह याद कर सकते हो। ये रेशो जिहड़ियां तुहानूं पता होना चाहिए कि ऑपोजिट किद्दां ना फिर तुसीं आवड़ी फिगर ड्रॉ कर लो जिहड़ा साइन के सामने उहदा रेसिप्रोकल कॉस के सामने उहदा रेसिप्रोकल कॉट टैन के सामने उन्हां दा रेसिप्रोकल। ठीक है जी इन्नी गल समझ लगी। हुण आह वाला फॉर्मूला भी तुसीं याद रखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जिहड़ा ब्लू च लिखिया आ। ठीक है जी जिहड़ा ग्रीन च तो इन्हां दी रेसिप्रोकल्स टर्म कीतियां ना तो जिहड़ा फिर ब्लू दे विच आ वो की आ पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है जी ये टर्म्स तुसीं याद रखने। फिर इन्हों याद रखने का फायदा की है कि तुहानूं पता होएगा कि जिहड़ा तुहाडा साइन आ वो किहदे इक्वल आ कॉस टैन कोसैक सैक कॉट ये किन्हां दे इक्वल आंदा आ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आंदा आ बेस अपॉन हाइपोटेनियस आंदा है जां फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आंदा है जां फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस आंदा है। ठीक है जी जां फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस आंदा है जो भी आ। ठीक है जी ये गल्लां तुहानूं पता ही इदां लगनियां जे तुसीं फॉर्मूलाज इन्ना क लर्न करोगे। इत्थों तक अजे इन्नी क गल समझ लगी सारिਆਂ ਨੂੰ। फॉर्मूलाज नूं नोट डाउन करिए रखियो फिर तुहानूं ये ईजी रहणगे। ठीक है कि अप्लाई करने और समझने। नैक्सट चलिए अगे नैक्सट आ जाता भी देखो ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी ये भी वो मेन 6 ही रेशियोज मतलब मेन 6 ही थीटाज आने आ कि ध्यान नाल देखो साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है जी टैन थीटा कॉट थीटा सैक थीटा कोसैक थीटा। रेसिप्रोकल ਇਹਦਾ कॉस ਦਾ रेसिप्रोकल टैन ਦਾ रेसिप्रोकल ਉਹਦੇ सामने आ। ठीक है जी हुण ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ एंगल्स आ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ एंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆ कि देखो इस एंगल ने ਇਹਦੇ ਵੱਲ जाना ठीक आ दैन इस एंगल ने ਇਹਦੇ ਵੱਲ जाना सेम टैन ने कॉट वाल फिर कॉट ने टैन वाल। ठीक है जी अगेन सैक ने कोसैक ते कोसैक ने सैक वाल। ठीक है जी हुण कंप्लीमेंट्री एंगल्स किद्दां हुंदे देखो फिगर अपनी किद्दां सी इत्थे 1 सीगा। ठीक है जी आपस दे विच मैच करदे सी इदां आवली फिगर बनदी हुंदी सी। ठीक है जी इहदा रेसिप्रोकल दैन सामने वाले दा रेसिप्रोकल। ठीक है हुण ये की आ रहा कंप्लीमेंट्री एंगल्स दे विच किद्दां होगा जिहड़ा पहला वो एक दूसरे के सामने ही लिख होने लिख किद्दां होने ध्यान दो फस्ट आना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 साइन दे अगे की है जी ਇਹਦਾ आंसर आ जाना अपने को कॉस थीटा। अगर आ जाए मेरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस के सामने की है जी साइन थीटा तो इसका आंसर आना साइन थीटा। ठीक है 1 2 हुण आ जाओ थर्ड ते थर्ड की है मेरे को टैन तो की आ जाना इतने टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू वो सामने की पिया हुआ है कॉट थीटा। फोर्थ अगर आ जाए अपने को कॉट तो फिर की आ जाना कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट की जगह तो की आ जाना फिर इतने सामने की होते टैन। फिफ्थ सैक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सैक के सामने किया कोसैक थीटा। सिक्स्थ कोसैक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा कोसैक के सामने किया जी सैक थीटा।
ਕੋਸੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕ, ਸੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸੈਕ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਰਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਏ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ, ਆਨਸਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਔਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਕਾਸ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। हुण सपोज देखो मैं हुण ए एंगल फाइंड करना, ए एंगल फाइंड करना तो 90 डिग्री तो उधर पे आई आ, जिहड़ा प्लस दा सी है दूसरी साइड जाके की हो गया माइनस दा सी। तो देखो सेम मैं थीटा फाइंड करना सीगा, थीटा कितना फाइंड होना? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा। इदा सेम जो मैं ए एंगल फाड़ना 90 डिग्री माइनस सी, तो जो फिर सी इधर लियाओ फिर वो प्लस होकर 90 डिग्री के इक्वल आ जानी है। जो मैं कला उन्होंने विचों एक एंगल ही फाइंड करना है, फिर दूसरी साइड चाहूगा वो 90 डिग्री माइनस हो जाना। आ 90 डिग्री माइनस आप थीटाज लाए हुए हैं। ठीक है जी, सी की जगह आप थीटा रखे, जो उन्होंने थानू कुछ पूछना है ए बी सी कुछ भी देंगे फिर तुम थीटा की जगह वही लिख देना। अगर उन्होंने 90 डिग्री माइनस ए लिखा तो तुम ए लिखोगे, 90 डिग्री माइनस बी लिखा तो तुम बी लिखोगे। ठीक है, अगर उन्होंने थीटा ही रखा है तो तुम थीटा ही रहन दोगे। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है कि वो थानू किहड़ा एंगल दिंदा है। ये जिद्दां अपने कोल दो एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी। ठीक है जी, ये भी इस फॉर्मूले तो ही जी आप फिगर पिछे ड्रॉ कर रखी सी, आ देखो जी फिगर आप इत्थे ड्रॉ की सी ना, आप इस तो ही आ वाले फॉर्मूलाज ड्रॉ किए आ। ठीक है जी, नैक्सट चलिए, नैक्सट आ जांदियां अपने कोल आइडेंटिटीज़। नैक्सट देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ भी आप उस फिगर तो ही ड्रॉ कर देनी। पहले फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, ये आप 3 एरियाज शेड कर देने, आप वाले 3 एरियाज शेड कर देने। ठीक है जी, हाँ फिर आप एक बारी देखो इस फिगर नूं ही एक बारी चक लेने अपना इधर चेंज करता, मतलब कॉट नूं इधर रखता, टैन इधर, क्योंकि इन्हां दी ऑपोजिशन ठीक है। ठीक है, अदरवाइज़ जे आप दूसरी तरह ही करते इत्थे टैन रहन देंदे ते कॉट तो फॉर्मूला तो सही बन जाना सी, बट थोड़ा लेंथी बनना सी। ठीक है जी, दैट्स वाई आप फिर टैन इधर करता, कॉट इधर, बिकॉज चीज़ तो सेम ही आ। टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टैन। अगर टैन इधर आ जा कॉट इधर आ, किधर भी होंदा, दोनों आपस च रहने तो ऑपोजिशन च सी। ठीक है जी, इन्हां दे विच आपां 3 साइड्स डार्क कर दिंदे आ, शेडेड। ठीक है, हुण इन्हां दे विच ना आपां क्लॉक वाइज एरोज बना दिंदे आ, क्लॉक वाइज तीनों दे विच, क्योंकि आप तीनों ही शेड किए ना, तो तीनों दे विच। हुण इहदा एक इन्हां दियां आइडेंटिटीज़ जिहड़ियां बननगियां, देखो फिर किस तरह बननगियां। फर्स्ट पहली किहड़ी है? साइन कॉज 1। इहदा मतलब की हो गया, जिहड़ियां आपां क्लॉक वाइज रखियां आ, इहदा आ जाना साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 दे इक्वल आ जानी। ठीक है जी, जिथे एरो का साइन मुकदा, इहदा मतलब आह दोनों चीज़ों की स्केयर उहदे इक्वल आ जानी। हुण देखो जिहड़ी सैकेंड आ, सैकेंड की बोलदा पिया आ
आ देखो एरो इत्थों स्टार्ट हो के मुकदा कित्थे पिया आ कोसेक स्क्वेयर थीटा दे इक्वल। ठीक है जी, तो यदा की बन गया मतलब 1 दा स्क्वेयर प्लस कॉट दा स्क्वेयर किहदे कोल आ गया कोसेक स्क्वेयर थीटा दे। ठीक है जी, मतलब इन्हों की भी सारिया की स्केयरिंग आ जानी, बस ये है कि जिथे एरो खत्म होना ना उसकी स्केयरिंग के इक्वल आना। हुण थर्ड देखो, थर्ड की आ टैन तो स्टार्ट होंदा मतलब टैन स्केयर थीटा फिर प्लस पा के 1 स्केयर फिर इज इक्वल टू कित्थे खत्म हो रहा सैक ते, तो यदा मतलब की आना सैक स्केयर थीटा। आ 3 आइडेंटिटीज इस तो बनिया। देखो जो आप क्लॉकवाइज ही जाना है, ठीक है जी, जो आप क्लॉकवाइज गए तो अपने को 3 आइडेंटिटीज़ आ गई। ठीक है, देखो साइन टू कॉस ते गए फिर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, 1 और कॉट तो गए फिर इज इक्वल टू कॉसेक हो गया। टैन तो 1 ते गए फिर इज इक्वल टू सैक हो गया। बट ये कि इन्होंने सारिਆਂ की कर देनी आप स्केयरिंग करके हम देखो कि एग्जैक्ट ही बन जाना। देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वेयर थीटा कि इक्वल आ गया, क्योंकि 1 की स्केयरिंग करो ऑलवेज की रहनी है 1 ही। ठीक है जी, फिर 1 की स्केयरिंग करो ऑलवेज की रहेगी 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा कि इक्वल आ गया कोसेक स्क्वेयर थीटा दे। ठीक है, फिर नैक्सट टैन स्क्वेयर थीटा 1 की स्केयरिंग की तो ऑलवेज 1 इज इक्वल टू सैक स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, अपने को आइडेंटिटीज़ आ गई 3। ठीक है जी, ये 3 आइडेंटिटीज़ आ गई। हुण इन्हां 3 ही आइडेंटिटीज़ तो आपां होर भी आइडेंटिटीज़ तैयार कर सकते हैं। हुण वो किस तरह होणगियां देखो, हुण देखो जी फर्स्ट आइडेंटिटी आ, फर्स्ट आइडेंटिटी अपने कोल किहड़ी आ गई हुण साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किहदे कोल आ रही है 1 दे, क्योंकि 1 की स्केयरिंग की तो 1 ही आ जाना ना, तो 1 दे। ठीक है, हुण इस तो किद्दां होर फॉर्मूलाज बना सकते हैं आपां। एक तो आ वाला फॉर्मूला मेन आ गया, एक बना हो सकते हैं आप जे ये मैं साइन स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी हो। साइन स्केयर की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी, साइन स्केयर थीटा एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है जी, फिर इधर 1 पे आई आ, अब प्लस द कॉस स्केयर थीटा दूसरी साइड जाके की हो जाएगा माइनस द कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, ये तो साइन स्केयर की वैल्यू होगी। जो मैं फिर इकल्ले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब वो स्केयरिंग ना हो, इकल्ले साइन थीटा की वैल्यू साइन जी स्केयरिंग होंगी आ वो दूसरी साइड जाके की बन जाती है जी रूट, तो फिर वो अंदर क्या है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा एज इट इज़ जी स्केयरिंग आ उन्हें दूसरी साइड जाके की बन जाना रूट। मतलब एक फॉर्मूले तो आप दोनों फॉर्मूलाज ड्रा करते। ठीक है जी, हुण देखो अगर आ तो ड्रॉ हो गए। ठीक है जी, हुण देखो अगर मैं साइन स्केयर की वैल्यूज़ दे तो देख लिया, अगर मैं कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, अगर कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो की होएगा 1 तो एज इट इज़ पिया आ जोड़ा प्लस द साइन स्केयर थीटा दूसरी साइड जाके उन्हें कि बन जाना नैगेटिव साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी, हुण जे मैं ये देखना हो जो मैं आप ये देखना कि ये मैं स्केयर थीटा नहीं कल्ले कॉस थीटा की वैल्यू देखनी आ, जी स्केयरिंग आ फिर दूसरी साइड जाके की बन जानी आ रूट, तो की आ जाना रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। देखो जो आप कॉज साइन दे फाइंड करने से फिर साइन लिए आप वाला फॉर्मूला लगवाया, मेन अपना वाला फॉर्मूला सी, इस फॉर्मूले तो ही आप वाला फॉर्मूला बनाता कि आ वाली चीज़ इधर रहती आ वाली भी इधर रहती, जी दूसरी सी ये 1 के नाल जाके उधर माइनस हो गई। फिर इस स्केयरिंग सी जो मैंने स्केयरिंग नहीं चाहिए तो स्केयरिंग दूसरी साइड जाके की हो गया रूट। ठीक है, सेम ये तो साइन दे से फिर जे आप कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है 1 उधर ही पिया साइन उधर जाके की बन गया नैगेटिव का, जो कल्ले कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी जी स्केयरिंग है दूसरी साइड जाके की बन गई रूट। तो अपने को एक फॉर्मूले तो ही 4 होर फॉर्मूलेज मिल गए। ठीक है जी, हुण इस तरह ही अपना नैक्सट जो फॉर्मूला आ नैक्सट मेन आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। हुण वो तो देखो वो किद्दां बननगे, देखो सैकेंड केड़ा फॉर्मूला अपने को 1 प्लस आइडेंटिटी है 1 प्लस
cot square theta is equal to cosec square theta। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੀਏ तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव ਦਾ cot square थीटा ਉਹ दूसरी साइड जाके की बन जाऊगा नैगेटिव ਦਾ cot square थीटा, उधरली साइड cos square थीटा। तो एज इट इज़ पिया ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव ਦਾ cot आ दूसरी साइड जाके की बन गया नैगेटिव ਦਾ cot square थीटा, नैगेटिव ਦਾ cot square थीटा। ठीक है जी, अगर यदि आप -1 च वैल्यूज़ कढ़नी है फिर किदा हो जाऊगा, देखो cot square थीटा एज इट इज़ पिया आ। ठीक है जी, दैन जो पॉजिटिव का कॉसेक थीटा है जो कॉट वाल आऊगा ये की हो जाऊगा नैगेटिव का, और जोड़ा फिर आ 1 कॉट के नाल पॉजिटिव पिया सी दूसरी साइड जाऊगा ये की बन जाऊगा नैगेटिव का। ध्यान नाल देखो आह वाली चीज़ इधर ही पई है अपनी जगह तो आह वाली चीज़ इधर ही पई है अपनी जगह, तो आप आह वाली चीज़ नूं चुक के ये नाल लैके गए तो पॉजिटिव की दूजी साइड जाके की बन गई नैगेटिव। ठीक है जी, नैगेटिव बन गई, नैगेटिव बन गई। हुण देखो हुण आह तो बन गया, इनू छड्ड दो। हुण आपां देखदे हां जिहड़ा आह वाला बनाया आ, हुण आह वाली चीज़ एज इट इज़ पई आ कल्ली, आही कल्ली एज इट इज़ पई आ। जिहड़ी इधर पई सी जदों इहदे नाल आऊगी नैगेटिव दी बन गई। ठीक है, आह वाली चीज़ इधर पॉजिटिव दी पई सी जदों दूसरी साइड जाऊगी ये नैगेटिव दी बन गई। इहदे विच भी आपां नूं 2 फार्मूलाज मिले, 2 फार्मूलाज मिल गए। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी, इन्नी गल समझ लगी सब नूं। हुण चलिए नैक्सट वाले ते। नैक्सट इदा ही ना तो बहुत बहुत फार्मूलाज बनते हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ अप्लाई करने ਆਪਾਂ जस्ट अजे ਉਹੀ सीख रहे हैं। ठीक है जी, ट्रिग्नोमैट्री ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ मैथ ਲੈਣਾ है ना ਉਹ बहुत ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨਾਂ फार्मूलाज ਨੂੰ ध्यान नाल देखण। ठीक है, लर्न करन प्रैक्टिस करन इस चीज़ की, और ये कोई भी फार्मूला ना छड्डण। ठीक है जी, नैक्सट अपने को आइडेंटिटी किहड़ी आई आ, tan स्केयर थीटा +1 किहदे इक्वल आ sec स्केयर थीटा दे। ठीक है जी, ये भी इदां सेम tan स्केयर थीटा इदां पिया रहन दो, sec स्केयर थीटा भी इस तरह ही पिया रहन दो, पर जोड़ा +1 tan दे नाल जाके दूसरी साइड लै जाओ sec दे नाल की बन जाना प्लस तो -1, क्योंकि इधर प्लस है दूसरी साइड जाऊगा -1 हो गया। ठीक है, ठीक है जी, हुण देखो हुण जो tan स्केयर थीटा एज इट इज़ पिया रहन दो, जोड़ा पॉजिटिव का सैक है इनू tan वाल ले आओ, ये नैगेटिव का हो गया, नैगेटिव का हो गया। जोड़ा इधर पॉजिटिव का 1 सी इनू दूसरी साइड ले जाओ, ये नैगेटिव का 1 हो गया, पॉजिटिव का 1 तो नैगेटिव का 1, आवड़ी इधर टर्म पॉजिटिव की सी tan वाल आन के नैगेटिव की हो गई। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी, इन्नी गल समझ लगी। हुण इहदा एक होर बना लो, होर भी बन जाना। हुण देखो सैक जिहड़ा सैक स्केयर थीटा उहनूं ना छेड़ो, वो अपनी जगह वाल ही आ, अपनी जगह ते पिया होया पॉजिटिव। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ tan स्केयर थीटा ਨੂੰ लेके जाना, tan स्केयर थीटा ਦਾ पॉजिटिव ਦਾ जो दूसरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ नैगेटिव ਦਾ tan स्केयर थीटा, और 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ अपनी जगह ਤੇ। पता ਚੱਲਿਆ? ठीक आ, आह किस तरह आप फार्मूलाज बनाए आ। ठीक है जी, अगर कोई कन्फ्यूजन आती आ दैन फिर तुसी की करना है, इनू एक बारी रीराइट करो, प्रैक्टिस करो, दोबारा वीडियो चैकआउट करो और समझो। ठीक है जी, फिर समझ आ जाना है कि आप किस तरह आइडेंटिटीज़ बना रहे हैं, और बना भी कितों रहे हैं, सिर्फ आप एक आ वाली फिगर चकी स्टार्टिंग च ही, इस फिगर तो ही आप सारे फार्मूलाज इन्हां दे ड्रॉ किए हैं। ठीक है जी, जिहड़ा आप कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाला भी किया आ, जां फिर आप इन्हां दियां ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर आइडेंटिटीज़ नूं अगे एक्सपैंड कर रहे हैं, जिहड़ियां पिछे रेशोज़ कीतियां सीगियां, ऑपोजिट एंगल्स कीते सी, वो सारे दे सारे इस बेसिस ते, मतलब सिर्फ इस एक फिगर के बेसिस ते आपां सारा कीता। ठीक है, तो हुण इन्हां सारे फार्मूलाज नूं लर्न करना, प्रैक्टिस करनी और अंडरस्टैंड करना है। नहीं समझ लगूगा वीडियो नूं दोबारा चैकआउट करना है, क्योंकि सारे फार्मूलाज आपां मैंशन कर रहे हैं फुल चैप्टर 8 दे इहदे विच। ठीक है जी, ठीक है, इन्हां दे सारिਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ आइडेंटिटी ਦੇ 4 जिवें ਇਹਦੇ 3 ਇਹਦੇ भी 3 बन जाने, आपां 3 बना दिंदे ਇਹਦੇ भी। देखो
जिमें इदां कि कॉट स्क्वेयर थीटा पिया ही होया है इधर, ठीक है जी। दैन फिर की अपना माइनस कॉसेक स्क्वेयर थीटा इधर आ जाऊगा, तो आ वाली टर्म उधर चल जाऊगी नैगेटिव दा 1, ठीक है। एक तो ये बनया ही आ, तो एक किहड़ा बन जाएगा, देखो कॉट स्क्वेयर थीटा एज इट इज़ पिया रहन दो, ठीक है जी। दैन फिर अपना कोसेक स्क्वेयर थीटा भी एज इट इज़ पिया रहन दो, जो प्लस दा 1 आ जो कोसेक नाल जाऊगा कि बन जाऊगा नैगेटिव दा 1, ठीक है जी। ये भी 3 फॉर्मूलाज बन गए। दैन इस आइडेंटिटी तो भी आप 3 बनाते, इस आइडेंटिटी तो 4 बनाते। इस तरह ही आप आइडेंटिटी को एक्सपैंड करके उन्होंने होर फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए जिस बच्चे ने स्पैशली +1 दे विच मैथ लेना आ, ठीक है जी, उन्होंने ट्रिग्नोमैट्री के हर फॉर्मूले को ध्यान दे नाल समझना, प्रैक्टिस करनी पैनी आ, कुछ नहीं छड्डना, क्योंकि +2 फिर +1 +2 इन्हां फॉर्मूलिਆਂ तो ही अगे एक्सपैंड होनी है, ठीक है जी। नैक्सट है भाई ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल, बहुत ज़रूरी है और बहुत कंपलसरी है वैल्यूज़ याद रखने लिए, ठीक है जी। एंगल्स अपने को किहड़े आंदे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। थीटा की होया एंगल, चेक करना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा की 0 डिग्री ते वैल्यू कितनी होएगी, 30 डिग्री ते, 45 डिग्री ते, 60 ते या 90 ते कितनी होएगी। एज दैट सेम बाकियां दी भी कोई कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन्हां सारियां दियां 0, 30 डिग्री, 45, इस तरह ही आप देखना है कि बाकियां दियां वैल्यूज़ बाकी डिग्रीज ते किद्दां होणगियां जां किन्नियां होणगियां, ठीक है जी। 90 डिग्री हुंदा π/2, 60 π/3, 45 डिग्री π/4, 30 डिग्री π/6, 0 का 0 रेडियाई, ठीक है जी। और जोड़ा पाई हुंदा वो 180 डिग्री होएगा। चलो हुण स्टार्ट करते हैं। हुण आ तो पता चल गया भी ट्रिग्नोमैट्रिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल इस तरह का हुंदा है, उहदियां इन्नियां वैल्यूज़ हुंदियां आ, हर एंगल की हर जगह तो इदा वैल्यू होएगी, हर डिग्री तो इन्नी वैल्यू होगी। बट द मेन पॉइंट कि आपां ये वाला इन्ना बड़ा टेबल याद किद्दां रखना है, ठीक है जी। तो याद रखन का ईजी वे आ वो आप चलो देखते हैं, वो सीखते हैं पहलों, फिर आप फॉर्मूला लगा के या फिर सोच के आप टेबल लर्न करांगे, ठीक है जी। फर्स्ट देखो, फर्स्ट अपने को की आ रहा आ साइन थीटा, ठीक है। ये आप सारियां पहलों जिदा मतलब इत्थे आ गया 0 डिग्री, ठीक है जी, फिर 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आ टर्म्स तो आ रही हैं, ठीक है जी। तो आप की करना है हुण, वैल्यूज़ लैनियां किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो साइन है ना 0 तो काउंटिंग करनी शुरू करनी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक काउंटिंग करती। फिर आप की करना, ये अपॉन पा देना सारी जगह पर, इत्थे भी डिवाइड करा देना सारी जगह नूं 4 दे नाल, ठीक है जी। डिवाइड कराता, पहला स्टैप की सीगा कि 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखी 0 तो लैके 4 तक, फिर सारी टर्म नूं 4 दे नाल डिवाइड करवाता। हुण सारी टर्म्स ते आपां रूट पा देना, पाता। हुण तुहानूं पता है 0 नूं तुसीं किसी भी टर्म दे नाल डिवाइड करो, आंसर ऑलवेज उन्हें तुहानूं 0 ही देना। रूट च 0 आ, बाहर 0 आ, 0 0 ही रहूगा, नैगेटिव 0, पॉजिटिव 0, रूट च 0, जिस मर्जी 0, 0 ने ऑलवेज 0 ही रहना। सैकेंड 1 का रूट करो, ऑलवेज 1 ही आऊगा। 4 का रूट कितना हुंदा है जी, 4 का रूट कितना हुंदा अपने कोल, देखो 2, सबनों पता है ना। देखो अपने को इत्थे 4 पिया, 4 के पेयर्स कितने हो गए, 2 क्रॉस 2 कितना हुंदा 4, इन्हां पेयर्स के विचों एक बाहर आ जाना, मतलब √4 का आंसर किहदे कोल हुंदा है 2 दे, ठीक है जी। हुण नैक्सट चलो आह √2 एज इट इज़ अपॉन √4 का आंसर 2। हुण इसनूं जिहड़ा आह वाली चीज़ है इन्हूं इत्थे छड्डना नहीं आ, इन्हूं सॉल्व करना। हुण किस तरह सॉल्व करना ये देखना। देखो हुण ये आपां देख के हटे हैं, जिहड़ा मेरा 2 आ वो किहदे कोल आंदा है 2 क्रॉस 2 दे, मतलब जे मैं लिखां 2 क्रॉस 2, √2 क्रॉस 2 ये किहदे कोल आना, 2 दे कोल आना। तो फिर मैं की करना है,
ਉੱਪਰ √2 ਐਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ नीचे 2 ਆ ना ਉਹਦੀ जगह ਤੇ ਕੀ लिख देना 2 √2 इंटू √2। एक √2 ना एक √2 कैंसिल हो गया, मेरे को फिर सिर्फ बच की गया ऊपर 1 बच गया, नीचे की बच गया √2। इस जगह का आंसर कितना आ गया 1/√2। हम सेम चीज़ इत्थे आ, इत्थे देखो √3 तो ऊपर √3 ही रहूगा क्योंकि √3 ओपन ही होया। 4 का रूट कितना ओपन हो जाना जी 2। हुण 4 आपस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो 1 का रूट ऑलवेज की आऊगा 1, मतलब इस तरह। ठीक है जी, देखो मेरे को 0 डिग्री ते 0 वैल्यू, 30 डिग्री ते 1/2 वैल्यू, दैन 45 डिग्री ते 1/√2, 60 डिग्री ते √3/2, 90 ते 1। ये सी साइन का। ਹੁਣ सेम इस तरह ही आप cos थीटा ਦਾ फाइंड कर सकते हैं, बट उत्थे की करना जिद्दां साइन च आप कित्थों शुरू किया सी 0 1 2 3 4। हुण ये इधरली साइड तो ओपन करना 0 1 2 3 4। ये नाल भी सारा आप डिवाइड करवा देना 4 नूं। ये आप 0 इधरों लैफ्ट साइड तो शुरू किया सी, cos तो आप राइट साइड तो शुरू कर देना, इन्हां ते भी आप रूट का साइन पा देना। ठीक है जी, हुण ये भी सेम देखो 4 ਨਾਲ 4 कैंसल करके 1, √1 का आंसर ऑलवेज की आना 1। ठीक है, इत्थे भी √3 एज इट इज़ डिवाइड जो √4 आ उसका आंसर कितना आउंदा, √4 का आप देख चुके सी 2 आंसर आया। हुण अगेन आह 2/4 आह चीज़ खुल रही है, 2/4 सेम चीज़ ओपन हो रही है, तो इनू भी तुसीं देखो ओपन करोगे √2 एज इट इज़ रह जूगा, अपॉन √4 का आंसर 2 लिखता। बट आप इन्हूं इत्थे छड्डना नहीं आ, आप इन्हूं √2 उपर एज इट इज़ रह जाना, जो 2 आ किहदे कोल आंदा हुंदा √2 इंटू √2 दे, फिर √2 ना एक √2 कैंसल कर देना, उपर 1 बच गया, नीचे √2 आ गया। ठीक है जी, हुण सेम 1/4 मतलब 1 तो एज इट इज़ रह जूगा, √4 का आंसर 2 हुंदा आ। ठीक है जी, हुण 0 नूं किसी भी टर्म दे नाल डिवाइड करवा दो, रूट्स करवा दो, उदा करवा दो, ਉਹਦਾ आंसर की आना ऑलवेज 0। ਹੁਣ cos ਦਾ आंसर 0 डिग्री ते 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 30 डिग्री ते √3/2 ਹੁੰਦਾ, 45 डिग्री ते 1/√2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 60 डिग्री ते 1/2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 90 डिग्री ते 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਇਹ तो आ गया साइन ਤੇ cos ਦੇ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ tan ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan फाइंड करना आप कर लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा कर लेंगे, जिदा sin की वैल्यू कितनी आ दो 0, cos की वैल्यू पहुँच 1 रख दो, आंसर कितना आ गया 0, मतलब tan थीटा आर ऑफ च रख लियो, tan थीटा का 0 डिग्री ते आंसर कितना आ गया 0। ठीक है जी, फिर tan थीटा sin थीटा 1/2 पुट कर दो, आ सारा रफ वर्क आ। ठीक है, मैं ये रफ कर लगी हाँ। हुण आप इत्थे 1/2 रखता उपर साइन की जगह, तो अपॉन पा दो आ वाला अपॉन, फिर cos थीटा का आंसर √3/2। हुण की आ 2 नाल 2 मेरा कैंसल हो रहा है, 2 नाल 2 कैंसल हो गया, मेरे को tan 30 डिग्री ते वैल्यू कितनी बच गई 1/√3। ठीक है, फिर अगेन साइन थीटा की वैल्यू तीजी कितनी है 1/√2, फिर अपॉन का साइन यूज़ करो, फिर cos थीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/√2, √2 ना √2 कैंसल, ये वैल्यू कितनी आ गई सिर्फ 1, तो 45 डिग्री तक tan की वैल्यू आ गई 1। फिर 60 डिग्री ते tan की वैल्यू कितनी है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा की कितनी आ √3/2 अपॉन cos की कितनी है 1/2, फिर की है 2 ना 2 कैंसल, वैल्यू कितनी बच गई सिंपल √3। ठीक है जी, फिर की आ रहा है लास्ट 1 अपॉन cos थीटा की कितनी है 0, 1/0। जे उपर 0 आ जाए तो पता सारे आंसर 0। हुण जे 0 नीचे आ जाए यदा मतलब होंदा इनफिनिटी, जिहदा आपां नूं आंसर नहीं मिलिया इनफिनिटी, दैन जो इनफिनिटी आ जाना उत्थे आपां की लिख देना नॉट डिफाइन, कि मतलब वो चीज़ डिफाइंड ही नहीं हो रही। ठीक है जी, tan का भी आंसर मिल गया अपने कोल, cos के आंसरस भी मिल गए आपां नूं, साइन दे भी मिल गए। ठीक आ, दैन cot थीटा दे इत्थों cos थीटा अपॉन साइन थीटा करके भी पता कर सकते हो, ਜਾਂ फिर cot थीटा अपने किहदे रेसिप्रोकल ਹੁੰਦਾ ਆ tan थीटा दे, तो cot थीटा का आंसर की आ जाना सीधा
ਇਹਦਾ 0 ਆ, ਇਹਦਾ 0 ਆ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 1/0, ਇਹਦਾ 0 ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ tan, ਇੱਥੇ 1 ਰੱਖਿਆ, tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/0, ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ। ਜੇ ਥੱਲੇ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਅਪੋਨ 'ਚ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ 1/√3, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, √3 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, √3/1 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਤੋਂ 1 1 ਆ, 1 ਦਾ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਹ √3 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਪਰ 1 ਚਲ ਜਾਣਾ, ਨੀਚੇ √3 ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਚੇ √3 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਸੀ, ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 1/0 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 0/1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 0। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਟੈਨ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ ਔਰ ਸੈਕ ਥੀਟਾ। ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸੀ ਬਈ, ਕੋਸੈਕ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਸਰਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ 0 ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ 1/0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ 0/1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1/2 ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2/1 ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1/√2 ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ √2/1 ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ √2 ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ √3/2, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ 2/√3, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 1, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ 1 ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 1/1 1/1 ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕ ਥੀਟਾ। ਸੈਕ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸੀ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ। ਕੋਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਆ 1 ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ √3/2 ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 2/√3। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 1/√2, ਇਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ √2/1, ਮਤਲਬ √2 ਹੀ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 1/2 ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ 2/1, ਮਤਲਬ 2। ਦੈਨ ਫਿਰ 0 ਆ, ਜਦੋਂ 0 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਦੋਂ 0 ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤੋਂ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 0 ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ 1/2 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 1 1। ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਸ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 1, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ √3/2 1/2 √1/2, ਦੈਨ ਫਿਰ 1/2, ਫਿਰ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟੈਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 0 0, ਦੈਨ 1/√3 1/√3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ 1 1 √3 ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਸਿਕ ਥੀਟਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਸੇਮ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ 2, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ √2, ਫਿਰ 2/√3, ਫਿਰ 1, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕ ਥੀਟਾ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन। लास्ट किया कॉट थीटा का फर्स्ट किया नॉट डिफाइन, सेकंड किया √3, फिर लास्ट 1, फिर उस तो 1/√3, फिर 0 0। तो ये आ जी तुसीं जिहड़े फॉर्मूला टेबल आ ना उन्होंने एकदम तो चलो मन्निया कि नहीं आना, बट यह कि तुसीं जिद्दां उन्होंने प्रैक्टिस करोगे ना इस तरीके नाल सॉल्व आउट करन दी वैल्यूज़ कड्ढण दी उन्नी जल्दी तुहानूं टेबल दीयां वैल्यूज़ लर्न होणीआं। जे तुसीं इकल्ला कहने अगर सीधा टेबल ही याद करना है फिर तो रट्टे वाला काम आ। देख लो जिन्हों तो होंदा है वो डायरैक्ट याद कर लो, ठीक है जी। बट जिन्हों ने प्रॉपरली समझ के करना है, खुद सॉल्व आउट करके करना, उन्होंने तो वाला मैथड हैगा आ कि उन्होंने परमानेंटली लाइफ टाइम आ वाला फिर मैथड याद रहूगा और ट्रिग्नोमैट्रिक का टेबल उन्होंने ये थ्रू याद रहूगा परमानेंटली, जो मर्जी सो लाइफ च ओपन करके देख लियो, ठीक है जी। ये भी कुछ नहीं, ये भी थानू मेन 2 चीज़ां याद करनिया पैनियां साइन या कॉस दियां। 0 तो 4 तक इधर जाना, फिर इधरों 0 तो 4 तक इधर जाना। बाकी थानू पता टैन का रेसिप्रोकल जां टैन किद्दां ओपन हुंदा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दे, ठीक है। कॉट टैन थीटा का रेसिप्रोकल आ, दैन कोसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल आ, सैक कॉस का रेसिप्रोकल आ, ठीक है जी। तो सारे बच्चों ने हुण ट्राई करनी आ
ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।